Good morning. Now, in the previous video, I was discussing the mode 1. So, in the mode 1, I have drawn the waveform. Okay, you can see it. I have drawn the waveform in the mode 1. See, I have drawn here. I have kept arrow here. I haven't kept the arrow here. That means mode 1 is not starting from this point. So, here I have started the mode 1, but I haven't not end the mode 1. That means this is continuous. So this will come and this will come. Okay. Now let us what was the status of MMF? Okay, in the mode 1. So in the mode 1, what was the status? So in the mode 1, status was that in the primary part of the winding, current was I0 and number of turns was N1 by 2. Okay, so right here N1 by 2 into I0. This was the MMF. This was the N1 by 2 into I0. This was the MMF in the primary part of the winding. But in the secondary lower part of the primary winding, it was 0. Just see it. No current is flowing in the secondary winding. So MMF distribution is MMF will be 0. But MMF here will be N1 by 2 because number of turns is total N1. So here the number of turns will be N1 by 2 and the current flowing is I0. So I have N1 by 2 into I0. This is the status of mode 1. Okay. Now after this I will start the mode 2, or you can say that the first transient. See, whenever you trigger a thyristor, first it will come in a transient mode, then it will come in a steady mode, then again another thyristor you will start, it will come in a transient mode, again it will be in the steady mode, and this will continue as long as we need an AC voltage in the output. Okay, now see in the mode 2. So mode 2 is the transient mode. Here I have written T equal to T plus, means just about to start the operation. Okay, because we need a positive voltage and a negative voltage, then only we will get a means we need a positive part and negative part, then only we can understand it is an AC. So see the mode 2. So mode 2, what is happening in the mode 1, at the end of mode 1, see in the mode 1 thyristor T2 is capable of conducting, because here we can see thyristor is getting the positive voltage. Okay, so it can start if you provide the gate pulse. So I will provide the gate pulse in that thyristor number T2. जैसे ही मैं T2 को फायरिंग एंगल दूंगा, क्या होगा, T2 ऑन हो जाएगा. और देखो T2 के ऑन होने से व्हाट विल हैपन, जैसे ही T2 ऑन हुआ, जैसे ही T2 ऑन होगा, ये माइनस डायरेक्टली यहां लगेगा, देखो यहां से, और ये प्लस यहां लगेगा. मतलब एनोड में माइनस लगा, कैथोड में प्लस लगा. कितना वोल्टेज, 2Vs. स्टार्टिंग मोड 1 के एंड में कितना वोल्टेज था, 2Vs था कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज. तो इसमें रिवर्स वोल्टेज लगेगा और करंट क्या होगा, जो करंट सोर्स से फ्लो कर रहा था वो अचानक सा शिफ्ट कर जाएगा T2 के तरफ. इस वजह से ये दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो गया. पहला कंडीशन क्या है कि होल्डिंग करंट से करंट कम होना चाहिए, वो भी कंडीशन फुलफिल हो गया. दूसरा, इसमें रिवर्स वोल्टेज लगना शुरू हो गया. इस वजह से T1 ऑफ स्टेट में चला जाएगा और सोर्स से जो करंट है वो इस पाथ से लोअर पार्ट में ट्रांसफर हो जाएगा. लोअर पार्ट में ट्रांसफर हो गया. अब देखिए, अब ये तो हो गया, ठीक है. अब इसमें प्रॉब्लम आ रहा है क्या कि जो अपर पार्ट में पहले MMF बना हुआ था, वो कितना MMF था, यहां पर देखिए N1 by 2 into I0. अब देखिए, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो अपर पार्ट में तो करंट फ्लो नहीं करेगा सोर्स की वजह से. और इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें MMF सडन चेंज हो जाएगा, जो नहीं हो सकता है ऐसा. इसी वजह से एक कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है. देखो ये इस समय कैपेसिटर क्यों नहीं डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि डिस्चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, इसको पाथ चाहिए. ये ऑलरेडी क्या है, इक्विपोटेंशियल है ना, ये इक्विपोटेंशियल है, इसीलिए इसको ये पाथ मिल नहीं रहा है. पर इधर क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल नहीं हुआ,
इसको एमएमएफ का इसमें जो काउंट एमएमएफ इसमें जो इसमें सोर्स की वजह से ये शिफ्ट किया जो, तो ये एमएमएफ तो सडन चेंज होगा नहीं। इस वजह से क्या होता है कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब डिस्चार्ज होके क्या होगा, फिर से चार्ज हो जाएगा अपोजिट पोलरिटी। तो स्टार्टिंग में एमएमएफ का अगर देखा जाए तो मोड 1 में क्या होगा, एमएमएफ इधर होगा N1/2 इंटू IC। ठीक है, क्योंकि IC की वैल्यू क्या होगा, स्टार्टिंग में I0 होगा, तभी तो एमएमएफ दोनों का सेम होगा स्टार्टिंग के। उसका धीरे 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 IC क्या होगा, I0 से डिक्रीज होता हुआ 0 आ जाएगा, और इधर लोअर पार्ट में क्या होगा, एमएमएफ बनेगा। तो लोअर पार्ट में क्या होगा, N1/2 स्टार्टिंग में ये हो गया, स्टार्टिंग में IC की वैल्यू I0, तो टोटल ये क्या हो गया, 0 हो गया। धीरे धीरे IC क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो लास्ट में एमएमएफ बन जाएगा N1/2 इंटू I0 जो होना चाहिए। ठीक है, जो होना चाहिए मेरा। तो जस्ट इस चीज को यहां पे देखिए, मैंने गेट पल्स दिया, कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, it will discharge and again it will charge. This value will be 2Vs. We all know that capacitor discharges exponentially. We all know that capacitor discharges exponentially. So it will be like this. ठीक है, this is a mode 2, transient mode of T1. Sorry, T2. Now what is the voltage across T1? Now T1 में voltage क्या होगा, जैसे ही मैंने T1 को T2 को ऑन किया, T1 में रिवर्स वोल्टेज लगना शुरू हो गया। जब T1 में रिवर्स वोल्टेज लगेगा तो ये यहां से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो ऑन। आप देखो ये वोल्टेज 2Vs हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, T1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, T1 के अक्रॉस वोल्टेज, दिस वोल्टेज विल बी दिस, ये जब ऑन है, जब ये T2 ऑन है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इक्वल टू दिस होगा। तो Vc का जो वोल्टेज होगा सेम वोल्टेज T1 का भी होगा। देखिए इधर ऑन है, इस वजह से है ना, ये ऑन हो गया, तो ये इधर लगा, ये इधर लगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इक्वल टू Vc। तो जो Vc का बना है Vt1, आप 1 मिनट इधर होगा, सॉरी, ये Vs होगा 2Vs, और ये तो ठीक है, जो इक्वल Vc का होगा Vt1 का भी यही होगा, जस्ट उल्टा, इट इज 2Vs। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द Vt1, Vt2? ऑब्वियसली Vt2 ऑन हो गया है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। इसको 0 बना लीजिए। ओके, ये 0 हो गया। है ना, क्लियर, 0 हो चुका है। T1 का अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, आप देखिए T1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है, T1 के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल टू कैपेसिटर। सो मैंने इक्वल टू कैपेसिटर बना दिया, पर एनोड का हमेशा कैपेसिटर में क्या लग रहा है, ये, और कैथोड में प्लस लग रहा है, इसीलिए मैंने यहां से इसको इधर किया है। ठीक है, व्हाट अबाउट द V0? व्हाट अबाउट द V0? जस्ट सी, जैसे जैसे एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, ये भी अपनी पोलरिटी, आउटपुट पोलरिटी भी चेंज होते जाएगी। ठीक है, सो आउटपुट पोलरिटी चेंज होके सेम -V0 आ गया। ठीक है, जस्ट सिंपल है, आप इसको चेक कीजिए। जैसे जैसे एमएमएफ चेंज होगा ये भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज क्या, इक्वल टू दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज, तो सेम चीज इधर पोलरिटी बनता जाएगा। जब ये इधर आया तो ये प्लस हो गया ना, और ये माइनस हो गया। जब ये प्लस हो गया माइनस हो गया, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, ये तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये भी अपनी पोलरिटी धीरे धीरे चेंज करेगी, क्योंकि ये एमएमएफ क्या हो रहा है, ये जो एमएमएफ है ये धीरे धीरे एमएमएफ क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। N1/2 IC और
बाई टू इंटू आई जीरो इंटू आई सी। स्टार्टिंग में आई जीरो, आई सी की वैल्यू आई जीरो है, तो जैसे जैसे एमएमएफ चेंज होगा ये पोलरिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आता जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द आईसी, ऑब्वियसली आईसी विल बी देयर। सो स्टार्टिंग में आईसी क्या होगा, इक्वल टू आई जीरो एंड देन इट विल कम टू जीरो, है ना, कम टू जीरो होगा। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, करंट कैपेसिटर से जीरो हो जाता है, सो मैंने यहां लिख दिया। व्हाट अबाउट द IT1, सो IT1 में करंट सडनली जीरो आ चुका है, आपको पता है, शिफ्ट कर गया करंट कहाँ, सोर्स का करंट IT1 से IT2 में शिफ्ट कर गया, तो ये जीरो हो गया। व्हाट अबाउट द IT2, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, सो ये मेरा कंप्लीट वेव फॉर्म बन गया मोड 1 का, मोड 2 का। ठीक है, जो ट्रांजिएंट मोड है किसका, T1 का, T2 का। ठीक है, अब स्टेडी स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट में जो मोड 1 का, मोड 2 का एंड होगा, मोड 3 का भी वही होगा, कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो मोड T2 को जब ऑन किए तो मोड 2 में गया, मोड 2 में जाने के बाद अपनी मोड 2 में जाने के बाद क्या होगा, वो अपना एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये पोजीशन आ जाएगा। जस्ट देखिए, पहले मोड 1 में क्या था, अपर पार्ट में फ्लो कर रहा था, मोड 3 में क्या हो गया, लोअर पार्ट में सिर्फ फ्लो किया, तो ये Vs बना इक्वल टू Vs, तो ये भी Vs और ये भी Vs, बट इस बार अपोजिट पोलरिटी का, और ये क्या हो गया, 2Vs हो गया, सिंपल। तो एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूट अगर मैं करूंगा तो इसका क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा, और इसका क्या होगा, N1/2 इंटू आई जीरो। ठीक है, दिस इज इजिली अंडरस्टूडेबल। तो मोड 3 का अगर वेव फॉर्म बनाए तो ज्यों का त्यों रखना है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। मोड 3 देखिए, जो V0, V2, Vs, जो मोड 2 का एंड होगा वही चीज होगा ना। सिंपल है, जो मेरा मोड 3 क्या होगा, मोड 2 में जो था उसी चीज को आगे कंटिन्यू करना है। मोड 2 में क्या था, T1 को ऑन कर दे रहे थे, सॉरी T2 को ऑन कर दे रहे थे, तो एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या हो रहा है, लास्ट में वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, जो एमएमएफ का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन यहां से आपको बता दिया, समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट मोड 4। सो मोड 4 में क्या है, अगेन देखो, मोड 3 का एंड का पोजीशन देखो, मोड 3 का क्या है, ये T1 कैपेबल है कंडक्ट करने का, क्योंकि कैथोड में माइनस लग रहा है और एनोड में प्लस लग रहा है। सो T1 ऑन हो सकता है, अगर हम गेट पल्स दे दे तो T1 ऑन हो जाएगा, और जैसे ही मैं T1 को ऑन करूंगा T2 बंद हो जाएगा। जैसे ही मैं T1 को ऑन करूंगा, T2 ऑन होने से ये माइनस यहां लग जाएगा, ये प्लस यहां लगेगा, जैसे कैथोड में प्लस लगा, एनोड में माइनस लगा, T2 ऑफ हो जाएगा। सेम चीज होगा, फिर से एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो मैंने यहाँ पे डबल एरो से दिया है, आपको समझाने का कोशिश किया है। डबल एरो में ये कैपेसिटर का करंट है, और सिंगल एरो क्या है, सोर्स का करंट है। सेम चीज यहाँ भी है, डबल एरो क्या है, इसमें डबल एरो आपका कैपेसिटर सोर्स का है, सिंगल एरो आपका कैपेसिटर का है। जस्ट इसमें उल्टा कर दिया, कुछ भी वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो सेम चीज है, एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। सो इसमें अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में मोड 2 का स्टार्टिंग में क्या होगा, N1/2 इंटू I0 माइनस IC। IC का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगा, I0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, N2/2 इंटू IC MMF। जस्ट सी इट फ्रॉम हियर, ओके। कैपेसिटर डिस्चार्जिंग in this path, that's why IC, and here शिफ्ट कर गया ना, T1 ऑन होने से अपर पार्ट में करंट, सोर्स करंट शिफ्ट कर जाएगा, तो उसको काउंटर कौन करेगा, लोअर पार्ट कैपेसिटर डिस्चार्जिंग कैपेसिटर करंट।
चलिए इस चीज को फिर हम ड्रॉ अगर करते हैं तो क्या होगा, मोड 1 मोड 4 में क्या हो रहा है, मैं गेट पल्स दे रहा हूं T1 में, तो गेट पल्स देने के वजह से क्या हो रहा है, कैपेसिटर अपनी पोलरिटी चेंज कर रही है, VT1 सडन 0 हो जा रहा है, ठीक है। VT2 क्या हो रहा है, VT2 देखो रिवर्स वोल्टेज मिला, उसके बाद फॉरवर्ड वोल्टेज चला गया, 2Vs मिला, इधर 2Vs चला गया। दिस VT2 विल बी इक्वल टू दम अगेन, VT2 विल बी इक्वल टू कैपेसिटर वोल्टेज व्हेन इट इज ऑन। सेम चीज यहां पे मैंने बना दिया, ठीक है। व्हाट अबाउट द V0, अगेन इट विल चेंज द पोलरिटी फ्रॉम Vs माइनस Vs टू प्लस Vs। अगेन IC की वैल्यू क्या होगी, इन दिस वे इट इज I0, ओके। सेम चीज IT1 करंट सडनली बन गया इधर, एंड IT2 करंट विल बी कमिंग टू 0। सेम चीज फिर से मोड 1 मतलब ट्रांजिएंट मोड, T1 का ट्रांजिएंट मोड फिर स्टेडी स्टेट में चला जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में आपको पता है जो ट्रांजिएंट मोड का एंड पॉइंट रहता है सेम कंटिन्यू होता है, सेम इसको कंटिन्यू बना दीजिए। VT1 0, this ये बन गया हमारा, ठीक है। You can see it. So again it is a mode 1. So mode 1 के बाद फिर से mode 2 आएगा, mode 3, mode 4, mode 1, again mode 2, mode 3, mode 4, mode 1, and this will continue repeating as long as there is a connection. As long as there is a connection, it will continue. So mode 2, mode 3, mode 4, mode 1, mode 3, mode 4, sorry, mode 2, mode 3, mode 4, again mode 1, and this will continue, okay. As long as we need a AC supply in the output, this will continue. So this is all about the parallel inverter. Okay, there is a mathematical explanation, but I will not go in that. Okay, I will just I will draw. I have just only explained you the waveform and circuit. Okay. So one thing, students, see, one point must be in your mind that, sir, as in the initial classes you have studied that this is a DC and this is a transformer. So you all know that DC will not work in a transformer. See, DC if supply given to transformer then core becomes saturated and it can damage the core. Okay, but see here, I have not, this source is not connected to this transformer. Okay, sorry, this source is connected with the transformer via these switches, and we are switching these two thyristor regularly. That's why the core is not being saturated. Before it being saturated, we are switching it. बार बार हम क्या कर रहे हैं, स्विचिंग कर रहे हैं, इस वजह से कोर कभी सैचुरेट ही नहीं हो रहा है. इसीलिए क्या है ना, देखो ये कोर ट्रांसफार्मर में ये डीसी काम कर ले रहा है. ये आपको देखो समझना है, कोई चीज लॉजिक है हर चीज का. डीसी मेरा ट्रांसफार्मर में काम नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है. डीसी काम करेगा अगर हम उसको स्विचिंग बार बार स्विचिंग करेंगे तो क्या होगा, ये कोर में चेंजिंग होगा. और आपको पता है फैराडेज ने बोला है कि whenever there is a change in the flux then only EMF will be induced. तो चेंज तो हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, ठीक है. पहले अपर पार्ट में था, फिर लोअर पार्ट में गया, फिर अपर पार्ट में गया, फिर लोअर पार्ट में, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है. इस वजह से ये डीसी इस ट्रांसफार्मर में काम कर लेगा, ठीक है. सो लॉजिक को आपको समझना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल इन्वर्टर. In the next class, I will be discussing the series inverter, okay, where the load commutations
is being applied. So here the parallel inverter only force commutation. This is the commutating circuit. Okay, that's all about. Thank you. Just see the waveform.